اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے شہنشاہ امام زمانہ امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف سے رابطہ۔ دوستو، اس دور میں جتنے مسالک اسلامیہ ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے پاس جتنے پیغامات تھے وہ 10 ہجری کے بعد ختم ہو گئے تھے، یعنی شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال الہی کے بعد اللہ جل جلالہ سے ساری انسانیت کا تعلق، احکام اور رابطہ ختم ہو چکا ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک اللہ جل جلالہ انسانیت سے مربوط تھا، مگر ان کے تشریف لے جانے کے بعد اس کا رابطہ انسانیت سے منقطع ہو گیا ہے۔ اس دور حاضر کی انسانیت کے لیے اب اللہ جل جلالہ کے پاس کوئی تازہ حکم موجود نہیں ہے، بلکہ احکام کی فائل اس دور میں بند کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد سارا معاملہ علماء امت کے سپرد کر دیا گیا تھا کہ وہ ادلا اربع و خمسہ کے حوالے سے دین کے احکام کا تعین کرتے رہیں۔ اللہ جل جلالہ نے جو کچھ انسان سے فرمانا تھا وہ فرما چکا ہے، اب کوئی ایسی بات اس کے پاس نہیں ہے جو اس دور کے انسان کے لیے بچی ہو۔ دوستو، سوائے مسلک اہل تشیع کے کوئی مسلک یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ اللہ جل جلالہ انسانیت سے آج تک مربوط ہے، یعنی اس کا رابطہ کبھی بھی انسان سے نہیں ٹوٹ سکتا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی زمانہ حجت اللہ یا ولی الزمان سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کا ایک نمائندہ اور نائب ہر دور میں موجود رہتا ہے جو احکام الہی میں پیدا ہونے والے خلائے ارتقاء کو پر کرتا ہے اور دین میں پیدا ہونے والے جدید مسائل کو حل فرماتا رہتا ہے۔ اور اس دور میں وہ ہمارے شہنشاہ زمانہ امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف ہیں، جو اس دور کے ولی مطلق ہیں، جو اس دور کے حجت اللہ ہیں، جن کا رابطہ ایک لمحے کے لیے بھی خالق سے نہیں ٹوٹتا، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے اللہ سے منسلک رہتے ہیں۔ انہیں استنباط، استنتاج، استقراء، استخراج، استدلال اور دیگر عقلی اور منطقی طریقوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ جل جلالہ سے بالواسطہ ہر بات کے بارے میں تازہ بتازہ احکام لے سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 میں حکم خدا موجود ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر دلاؤ اور رابطہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے اور خالق اکبر اس آیت کریمہ میں کن لوگوں سے مخاطب ہے جو ایمان لا چکے ہیں۔ دوستو، بسم اللہ کے بعد قرآن کریم کی پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ ان متقین کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہے نکتے کی بات کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو غیب پر ایمان لائے وہ ہے متقی۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی غیب سے مراد اللہ جل جلالہ کی ذات پاک کو لے لے، جبکہ لفظ غیب پر غور کریں، یہ خود بتا رہا ہے کہ جس کے بارے میں بھی ہے وہ پہلے کبھی ظاہر تھا، اب غائب ہے اور پھر ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے لفظ والد مشروط ہے اولاد کے ساتھ، یہ نہیں ہو سکتا کہ اولاد تو ہو ہی نہ اور کوئی والد بھی ہو، ایسے ہی لفظ غیب مشروط ہے ظاہر کے ساتھ کہ وہ کبھی ظاہر تھا، جبکہ اللہ جل جلالہ کی ذات تو نہ کسی بشر کے مشاہدے میں پہلے آئی ہے، نہ آج آ سکتی ہے اور نہ ہی پھر کبھی آئے گی۔ تو واپس آتے ہیں سورہ آل عمران کی اس آیت کی طرف، غور کریں، سورہ ہے آل عمران، یہ لفظ آل عمران بھی کچھ بتا رہا ہے، اور پھر یہ آیت اس سورہ کی آخری آیت ہے، اس آیت کا آخری ہونا بھی کسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور قرآن کریم میں تھوڑے فرق کے ساتھ کہیں فرمایا گیا ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، کہیں فرمایا گیا کہ اس میں پرہیزگار لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، کہیں فرمایا جو غور کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ تقریباً 30 مقامات پر اسی طرح کی آیات موجود ہیں، باقی آپ کی مرضی، میرا کام تو اشارہ کرنا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر دلاؤ اور رابطہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی غیبت والے شہنشاہ معظم اجل اللہ فرجہ شریف پر ایمان لا چکے ہو، صبر کرو، اپنے ساتھیوں کو بھی اس غیبت پر صبر دلاؤ، اور اس دوران غیبت والے شہنشاہ معظم اجل اللہ فرجہ شریف سے رابطے میں رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔
ताकि तुम फलाह पा जाओ, यानी सुरखरू हो जाओ। दोस्तों, कुरान करीम राब्ते का हुक्म दे रहा है और राब्ता अल्लाह की जात से तो हो नहीं सकता, जबकि दूसरी तरफ फरामीन मासूमीन अलैहिस्सलाम में कि अगर कोई राब्ता करना चाहे तो ज़ियारत इमाम ज़माना अजलल्लाहु फरजो शरीफ की नीयत से मस्जिद जमकरान में 5 या 7 बुध की रातें गुजारे। कोई वहां नहीं जा सकता तो शब जुमा सूरह बनी इसराइल पढ़ लिया करे। अगर सूरह बनी इसराइल पढ़ने में कोई दुश्वारी हो तो 40 दिन दुआए अहद पढ़ लिया करे। और अगर किसी को बहुत जल्दी हो तो बुध की रात से शुरू करके 3 रातें नमाज तौबा और तवस्सुल पढ़ ले। बात सिर्फ उनसे राब्ते की है कि उनसे राब्ता कैसे किया जाए। वैसे तो कुतुब गैबत और दीगर मुकद्दमीन की किताबों में ये तमाम तरीके और इस जैसे दीगर कई तरीके ऑलरेडी मौजूद हैं, जिन पर अमल करके हर दौर में इंसानियत खालिक से बजरिया वलीउल असर मरबूत रही है। एक ज़रबुल मिसल है कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। लिहाजा मेरी भी यही गुजारिश है कि तनकीद पर जोर लगाने की बजाय आप कोशिश तो करके देखें। बस ये याद रहे कि ये दौर नबूवत नहीं कि दीन में इस्तिलाहात की जा रही हों या इज्तमाई अहकामात जारी किए जा रहे हों या नाउज़ बिल्लाह दीन में कोई तब्दीली की जा रही हो, बल्कि हमेशा ये बात याद रखें कि ये राब्ता भी इनफरादी होता है और अहकामात का दायरा कार भी फर्द तक ही रहता है। हाँ, कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी दूसरे के लिए कोई पैगाम भी मिल जाता है, मगर वो भी सिर्फ सुनने वाले और जिसके लिए वो होता है उसी तक महदूद रखने की शर्त के साथ। हाँ, बाज़ औक़ात कोई इज्तमाई नवीद भी दे दी जाती है, जैसे कि बस अब वक्त करीब है, ज़हूर होने वाला है। दोस्तों, राब्ते के हवाले से मेरे पास हजारों की तादाद में दलाइल और सबूत मौजूद हैं कि जिन लोगों ने दौर गैबत में शहनशाह मुअज़्ज़म इमाम महदी अजलल्लाहु फरजो शरीफ से राब्ता किया, उनकी ज़ियारत की और उनसे अहकामात लिए। अकमालुद्दीन, गैबत तूसी, गैबत नुमानी, अल इरशाद, नजमुल साकिब, दारुस्सलाम इराकी से लेकर मिक्यालुल मुकर्रम मूसवी तक अक्सर कुतुब गैबत के दिबाचों में लिखा हुआ है कि शहनशाह मुअज़्ज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु फरजो शरीफ ने ये किताबें हुक्मन लिखवाई हैं। और कम से कम कोई शिया इस बात का इनकार नहीं करता, यानी हुज्जत खुदा का राब्ता दौर गैबत में भी इंसान से मौजूद है। और इसके सबूत के लिए यही बात काफी है, यानी राब्ता था तो किताबें लिखने का हुक्म सादिर फरमाया गया। अगर गैबत में राब्ता और ज़ियारत मुमकिन नहीं है तो फिर ये अहकामात कहां से आ रहे हैं? दोस्तों, ऐसे हजारों वाक़यात हमारी किताबों में मौजूद हैं। किस किस को आप रद्द करेंगे? सबसे बेहतर यह है कि पाक खानदान अलैहिस्सलाम ने जो तरीके बताए हैं उनमें से कोई सा भी तरीका इख्तियार कर लें, मुशाहिदे पे दलील नहीं होती। अब आते हैं उस बात की तरफ कि जिसको वजह बनाकर जियारत करने वालों को झुटला दिया जाता है, यानी जनाब अली बिन मोहम्मद को अरसाल की जाने वाली शहनशाह इमाम ज़माना अजलल्लाहु फरजो शरीफ की तौक़ीय मुबारका कि जिसके एक फिक्रे को बुनियाद बनाकर जियारत करने वालों को झुटला दिया जाता है। उसका पहला जवाब तो यह है कि अली बिन मोहम्मद वाली तौक़ीय मुबारक के पहले नाकिल जनाब शेख तूसी हैं। उनसे पहले किसी ने उसे तहरीर नहीं किया। अब अजीब बात यह है कि उन्होंने ये तौक़ीय मुबारक भी नकल की है और साथ ही वाक़यात मुलाकात इमाम ज़माना अजलल्लाहु फरजो शरीफ भी लिखे हैं, क्योंकि वो इन दोनों बातों को एक दूसरे का मुखालिफ न समझते थे। उसकी वजह यह है कि जुमला उर्फ़ा उलमा ने खुद शर्फ ज़ियारत हासिल किया है और फिर इस तौक़ीय मुबारक के बारे में फरमाया है कि यहाँ लफ्ज़ रोयत से मुराद ज़ियारत नहीं बल्कि नियाबत है, यानी वो शख्स झूठा है जो दौर गैबत में नियाबत इमाम अलैहिस्सलाम का दावा करता है। उसकी एक वजह तो ये थी कि तौक़ीय मुबारक नियाबत के सिलसिले में थी कि अब नियाबत खत्म हो रही है, लिहाजा जो भी अब नायब होने का दावा करेगा वो झूठा होगा। जियारत की सदाकत या उसे झूठा साबित करने के लिए वो तौक़ीय मुबारक थी ही नहीं। और दूसरी वजह यह है कि अगर लफ्ज़ रोयत से जियारत मुराद लिया जाए तो इंसान 2 गुनाहों में से एक को इख्तियार करने पर मजबूर हो जाएगा, और ये दोनों ऐसे गुनाह हैं कि जिनमें से एक का इर्तिकाब भी बहुत ज्यादा नुकसान का मूजिब है। आप खुद देख लें
ایک ये है कि अगर इस तौक़ीए मुबारक को नाउज़ बिल्ला गलत कहा जाए तो ईमान न रहेगा, और दूसरी सूरत में सैयद मुर्तज़ा इल्मुल हुदा, मुक़द्दस अर्दबेली, अलामा हिल्ली और शेख मुर्तज़ा अंसारी जैसी आला इल्मी शख्सियात की तकज़ीब करना पड़ेगी और उन्हें नाउज़ बिल्ला झूठा कहना पड़ेगा। उसका नुकसान ये होगा कि अहले तशय्यो का पूरा दीन हक की मशकूक हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं लोगों की कुतुब पर तो अकायद शिया खैरुल बरिया की ये सारी इमारत खड़ी है। अगर उन सब की कुतुब बमा साहिबान कुतुब साकितुल एतबार हो जाएं तो दीन हक किस तरह मोतबर रह सकता है। इस तरह दौरे गैबत में जियारत से मुशर्रफ होने वाले ला तादाद मोमिनीन और ला तादाद उलमा और ला तादाद कुतुब गैबत के जो जियारत के वाक़यात से भरी पड़ी हैं, उनकी तकज़ीब करनी पड़ जाएगी और ये तकज़ीब दीन की इमारत को हिला कर रख देगी। इसीलिए जमा बैनुल रिवायात के कुलिया के तहत जरूरी हो जाता है कि ना तौक़ीए मुबारक की नऊज़ बिल्ला तकज़ीब का जुर्म अपने सर लिया जाए और ना उलमाए कराम और मोमिनीन की तकज़ीब का, बल्कि उन्हीं उलमाए हक की तौज़ी और तावील को कबूल किया जाए जो उन्होंने पहले ही फरमा दी है कि यहाँ दावा नियाबत और वकालत करने वाले को झुठला देना वाजिब है, ना कि दावा ज़ियारत करने वाले को। फिर मामूलात और मुसल्लमात शिया में से है कि बाज़ मकामात पर 40 मखसूस रातें जाना मूजिब ज़ियारत अक़दस है। मसलन मस्जिद साला 40 बुध की शब को जाना, मस्जिद जमकरान या करबला मुअल्ला में आमाल ज़ियारत बजा लाना। इन आमाल से लाखों इंसान ज़ियारत अक़दस से मुशर्रफ होते हैं, जिनके वाक़यात से कोई कुतुब गैबत खाली नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह मखलूक पर इमाम ज़माना अजलल्लाहु फ़रज शरीफ से तलब हिदायत करना वाजिब है, उसी तरह तालिब हिदायत को सिरात मुस्तकीम दिखाना हादिउल असर अजलल्लाहु फ़रज शरीफ पर भी वाजिब है। और कोई हुज्जत खुदा तर्क वाजिब की मुर्तकिब नहीं हो सकती, चाहे जान ही जान आफरीन के सपुर्द क्यों न करनी पड़ जाए। जैसा कि कूफियों ने जब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अतमाम हुज्जत की तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाक़यात करबला का इल्म रखने के बावजूद वहां अतमाम हुज्जत के लिए तशरीफ ले गए। इसी तरह अगर आज कोई उनके लख्त जिगर अजलल्लाहु फ़रज शरीफ से अर्ज करता है कि मेरे मौला मैं आपके जद्द मजलूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अज़ादार हूँ या मैं तालिब राह हक हूँ, मेरी हिदायत फरमाएं, मुझे खुद आकर सिरात मुस्तकीम दिखाएं। अगर आपने आज मुझे ज़ियारत ना करवाई और हिदायत ना फरमाई तो बरोज़े क़यामत मैं जवाबदेह नहीं होऊंगा और खालिक के सामने कह दूंगा कि जब हादी हकीकी अजलल्लाहु फ़रज शरीफ ने हिदायत ही नहीं फरमाई तो मैं दुरुस्त कैसे हो सकता था। तो ये फर्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर सूरत में हिदायत फरमाएंगे और अतमाम हुज्जत जरूर करेंगे। खुद सोचे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की गलियों में हिदायत का फरीजा अंजाम देते हुए कितने सितम उठाए, जिस्म अतहर के खून से नालैन लबरेज हो गई और हमारे इमाम ज़माना अजलल्लाहु फ़रज शरीफ के सर अतहर पर वही दस्तार है और वही मनसब हिदायत इन्हें भी हासिल है, तो क्या ये हमारी हिदायत ना करेंगे? अगर हम काफिर भी हों तो तब भी इन्हें हिदायत फरमाना चाहिए, हालांकि हम तो उनके अजदाद ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत और मवद्दत रखने वाले हैं और उनके हर हर्फ को हर्फ आखिर समझते हैं। दोस्तों, नेक और साले बंदों का तो फिर भी कोई ना कोई सहारा है, अमल का, नेकियों का, किरदार का सहारा है। हमारा तो इस करीम अज़ल के सिवा कोई सहारा नहीं है। ये कैसे हमसे दूर रह सकते हैं? डॉक्टर की जरूरत सेहतमंद को नहीं मरीज को होती है। साले तो सेहतमंद है, मरीज तो हम गुनाहगार हैं। वो कैसे मुआले जो डॉक्टर हैं जो कह दें कि मैं मरीजों से नहीं सेहतमंदों से मिलूंगा। मर्ज जितना ज्यादा हो डॉक्टर की निगरानी की उतनी ही ज्यादा जरूरत होती है और हम तो इमरजेंसी वार्ड में रखने के काबिल मरीज हैं। हमारा करीम मुआलिज हमसे कैसे गाफिल हो सकता है? हमें जियारत न करवाना और हिदायत न फरमाना तो उनके ओहदे और मकाम के खिलाफ है। हम जरा उन्हें बुलाकर तो देखें। जब कोई बीमार होता है तो खुद चलकर या उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, मगर जब कहीं कोई वबा फूट पड़े तो रेस्क्यू टीमें खुद चलकर जाती हैं, घर घर जाकर मरीजों का इलाज करती हैं। आज यही आलम है। अमराज कुफ्र और शिर्क और मासियत और इस्यान वबा की सूरत में फूट पड़े हैं, जिन्होंने पूरी इंसानियत को अपनी लिपेट में ले लिया है। तो ऐसी सूरत में हुकूमत इलाहिया की रेस्क्यू टीम को भी घर घर जाकर इलाज करना चाहिए, मगर हम उन्हें कुछ वक्त तो दें कि वो हमारा इलाज करें। हम इलाज की जरूरत को महसूस तो करें, अपनी गुमराहियों को तस्लीम तो करें, तलब हिदायत करके तो देखें। इस दौर में राब्ता और ज़ियारत तो बहुत आसान फरमा दी गई है, मगर जब कोई चाहने वाला ही ना हो तो फिर किसका कसूर है?
ये रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत लिल आलमीन फरजंद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जो माँ बाप से ज्यादा मेहरबान हैं, जिनकी रहमत से बिला इम्तियाज नेक व बद हर आदमी फायदा उठा रहा है। उनके फयूज व बरकत से हर शख्स इस्तिफादा हासिल कर रहा है। जिनकी शफकत माँ की ममता से लाखों गुना ज्यादा है, वो हमारी हलाकत पर कैसे खुश हो सकते हैं। एक माँ है, उसका एक बच्चा है और वो आंखों से अंधा है, जो गिलाजत में लिथड़ा हुआ है, और अचानक उस बच्चे पर एक कुत्ता हमला कर देता है, तो क्या माँ अपने बच्चे को सीने से इसलिए नहीं लगाएगी कि बच्चे के कपड़े पर गिलाजत लगी है? क्या वो गिलाजत की वजह से उसे कुत्ते से नहीं बचाएगी? हमारी सूरत भी यही है कि हम वो अंधे बच्चे हैं कि जिन्हें कुछ नजर नहीं आता, और हम पर इब्लीस एक बौले कुत्ते की तरह बार बार हमला करके नोच रहा है। और हम गलीज होने की वजह से अगर माँ से भी ज्यादा मेहरबान जात को ना बुलाएं तो अंजाम क्या होगा? अगर हम बुलाएं तो क्या वो हमें नहीं बचाएंगे? बात सिर्फ इतनी है कि हम खुद को उनका बच्चा तो बनाएं, अपने अंधे होने का और कुत्ते के काटने का एहसास करके चिल्लाएं तो सही। फिर देखें किस तरह जनाब हूर अलैहिस्सलाम की तरह हमें इमाम मजलूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लख्त जिगर अजलल्लाहु फरजो शरीफ सीने से लगाते हैं। तमाम गुस्ताखियां, सारे गुनाह भूल कर किस तरह मेराज सादत नसीब करते हैं।